Wish you a very good morning, students. Today, we are going to begin a new topic. Can you guess the topic? Do you know what is this? What is this? Registered letter or a letter. आपने ये एनवलप अवश्य देखा होगा. इस एनवलप में आपने लेटर्स आते, लिखते या जाते हुए देखे होंगे थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और another way. Now, we are going to discuss the new topic, letter writing. This topic is among the writing skill sections. In every class, in every examination, letter writing is the most important topic. Either this or that type of letter is asked to write. And this letter writing contains or takes 5 to 6 marks in every paper or every exam. So it becomes more important, and this is a life skill. We have to write, all the students have to write a letter to an office, to an educational institute, to his relatives or anywhere else. So, if we learn this skill of letter writing, it will be very much beneficial to all of us. आइए हम लेटर राइटिंग का यह स्किल सीखते हैं. सबसे पहले, by watching this video, you will be able to know the concept of letter, importance of letter writing skill, format of letter writing, do's and don'ts while writing a letter, how to write an effective letter, or how can we convey some information from one person to another person, from one office to another office. In this way, we can learn so many things regarding letter writing. First of all, what is a letter? Letter is the oldest form of communication between two persons, between two nations, between two states, between two offices, between a person and an office or a company, between two relatives, between two friends, between two family members. This is the oldest form of communication. This is the written communication between two parties. दो लोगों के मध्य, दो कार्यालयों के मध्य एक बहुत ही सशक्त और लिखित संप्रेषण का साधन. In letter writing, there are two persons who are very much important. One is the sender and the another one is the receiver. The sender writes a letter and sends to the receiver, and the receiver reads the letter, gets the information and responds to the sender again by writing a more letter. In this way, this is the way of oldest form of communication between two people, between two persons or offices. But in case of letters, today we get no letters in case of families, friends or relatives, because mobile phones, frequent chat between relatives, friends and family members, WhatsApp, Instagram, Facebook have decreased the importance of letter writing between family, friends, relatives and other members. But we shall discuss here the types of letters. First is formal letter, another one is informal letter and social letters. Here we shall discuss formal letters. What do you mean by formal letters? फॉर्मल लेटर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले होते थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा. हां, इतना अवश्य है कि आजकल हम लेटर्स थ्रू ईमेल, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल से ही हमें लेटर प्राप्त होते हैं. बहुत ही
कम लेटर्स आजकल थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भेजे या प्राप्त किए जाते हैं. बट वी मस्ट हैव द स्किल ऑफ लेटर राइटिंग. Formal letter. Formal letter may be of many types. For example, business or official letters. Second one is letter to the editor of a newspaper or a magazine. And the third one is application for jobs, for job opportunities. Now we shall discuss these letters in detail. First is business or official letters. In case of business letters, the letters are written for inquiry, for placing orders of some products, cancellation of orders, complaints of products, reply or response letters, or official letters are usually written to some offices to know, to gain, or to give some information. For asking or giving some information, official letters are written. We usually write letters or applications to educational institutes and other offices. These letters or these type of letters are considered, are taken among business or official letters. अब हम बात करते हैं लेटर टू एडिटर. अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की पब्लिक को अवेयर करना है किसी इंफॉर्मेशन से, इफ वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, अवेयरनेस अमंग पब्लिक, then we have to write a letter to the editor of a renowned newspaper or a magazine. Opinions, suggestions are given, are written on the issues of public interest. पब्लिक इंटरेस्ट के जो इशू होते हैं उन पर अगर हमें अपने ओपिनियन या सजेशंस संबंधित ऑफिस को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को देना है तो हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रिटन फॉर या टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस. And the next is job applications. Job applications are usually written to seek jobs, to find jobs, or to forward or resume for job opportunities to different institutions or organizations. In this way, we write these formal letters. If we know the writing skill of letters, we can get full marks in letter writing skill. Dear students, हमने जाना एक फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसकी हमें कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है. आइए अब हम सीखते हैं हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर. किसी भी लेटर को लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इट्स फॉर्मेट. अगर हम किसी लेटर का फॉर्मेट भी जान लें तो हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी लेटर की स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है, उस स्टेटमेंट से हम बहुत कुछ निकाल कर उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एंड इट बिकम्स ए लेटर, एन इफेक्टिव लेटर. आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक लेटर के, जो एक लेटर में हमें लिखने ही चाहिए या लिखने होते हैं. अगर आप एक छोटा सा निमोनिक्स याद कर पाएं तो उसका नाम है SDR SSBC. SDR SSBC. अगर आप इस निमोनिक्स को याद रख पाएं तो यही वो 7 पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फॉर्मल लेटर. SDR. S means sender's address. D stands for date. R stands for receiver's address. S stands for subject. Next S stands for salutation. Next B stands for body of the letter. And the last C stands for complimentary clause. सबसे पहले
हम लेटर लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, अर्थात भेजने वाले का पता। लिखेंगे कहां? यहां हम फॉर्मेट की बात भी साथ साथ करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे ये हम बाद में डिटेल से वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका पेज है, नोटबुक है या आंसर शीट का पेज है। राइट सेंडर्स एड्रेस ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सबसे पहले, हालांकि बहुत पुराने स्टाइल में हम इसको राइट साइड में लिखा करते थे या केवल रिसीवर्स एड्रेस से शुरू करते थे, बट दिस इज द न्यू और लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। राइट सेंडर्स एड्रेस ऑन द एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर शीट। यहां पर हम कम से कम 3 लाइन का ये एड्रेस होगा जो हम यहां लिख देंगे, और कैसे लिखेंगे वी शैल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट इज डेट। यहां पर हम एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि प्रत्येक पॉइंट हमारा बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखाई दे, हमारा लेटर बहुत ही सुंदर लगे। यहां पर एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए हम लिखेंगे डेट। डेट को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग इसे DD MM YY फॉर्मेट में लिखते हैं, कुछ लोग इसे नेम ऑफ द मंथ DD कोमा एंड देन ईयर लिखते हैं, वो हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड इज रिसीवर्स एड्रेस। दिस इज यूजुअली गिवन इन द स्टेटमेंट कि टू होम वी आर राइटिंग ए लेटर टू। किसे हम लिख रहे हैं, उस रिसीवर का एड्रेस हम यहां कम से कम 3 to 4 लाइंस में टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में डेट से नीचे लिखेंगे, और डेट के और रिसीवर्स एड्रेस के बीच भी वी शैल लीव 1 line blank. After receiving address and leave one more blank line to separate it from date as well as from the subject below. Then we shall write subject. सब्जेक्ट भी यूजुअली हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ होता है कि फॉर व्हाट इज द लेटर रिटन अबाउट, व्हाट इज द सब्जेक्ट और पर्पस ऑफ लेटर. After writing this subject, we shall again leave a 1 line blank, and then we shall write salutation, greetings, depending on the receiver, the relation of the sender with the receiver. We shall write proper salutation, and then we shall write the main part of the letter, that is body of the letter. After writing the body of letter, we shall close our letter with certain expressions जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स लेते हुए भी हम 2-3 लेटर्स को लिखकर यहां देखेंगे. एंड एट लास्ट, विच इज द 7th point, we shall write कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज से, रिगार्ड से हम इस लेटर को यहां समाप्त कर देंगे. इन दिस वे वी कैन कंप्लीट आवर लेटर इन दिस फॉर्मेट. Format is a very important aspect of letter writing skill. You must have mastery over the format. Now, there are 7 points. First is sender's address. Second is date. Third is receiver's address, SDR. Then we shall write subject and salutation, means SS. Subject, salutation, then body of the letter, and at last complementary clause. SDR, SS, BC. We shall revise it once more. Sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, body, and complementary clause. In this way, we can complete any letter in this format, either it is a business letter or a letter to the editor. In this way, we can learn all the 7 key points of a letter writing skill. आइए
अब हम एक फॉर्मल लेटर के सभी 7 पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करें कि किस प्रकार से हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, कहां लिखेंगे और कैसे, किस प्रकार से हम किसी भी लेटर में डेट लिखेंगे, कैसे हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, कैसे हम सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखेंगे। आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस यूजुअली आपकी स्टेटमेंट में दिया होता है, लिखा होता है यू आर रमेश 217 सेक्टर 13 भिवानी, अर्थात आप इस एड्रेस के रेजिडेंट हैं या इस ऑफिस में आप काम करते हैं। सेंडर्स एड्रेस दिया होता है। इफ द सेंडर्स एड्रेस इज गिवन इन द स्टेटमेंट, then write the same sender's address here. If no sender's address is given, then and you are writing this letter from your examination hall or from your examination room, then you can write here examination hall ABC or XYZ. इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। But if the sender's address is given in the statement, then all the students have to write the same sender's address. एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में फर्स्ट 3-4 लाइन्स में आप सेंडर्स एड्रेस को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिखा 217 सेक्टर 13 भिवानी हरियाणा। इस प्रकार से हमने ये सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। दिस सेंडर्स एड्रेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ए लेटर because a receiver has to respond this sender. Actually, this address is very much important for the receiver. Without sender's address, the receiver can't respond to him, can't reply to him. That's why it becomes much important for the receiver. अब हम इसको लिखेंगे कैसे? बहुत सारे बच्चे इसमें पंचुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 217,13-13 भिवानी ब्रैकेट एटसेट्रा। यू नीड नॉट टू यूज एनी पंचुएशन मार्क हियर। आपको कोई पंचुएशन मार्क का यूज यहां नहीं करना है। विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क, राइट डायरेक्टली। इफ देर इज ए नंबर एंड ए वर्ड, then this is automatically separate and understandable. आप समझ सकते हैं ये डिजिट्स में लिखा है, यहां वर्ड्स में लिखा है। You need not to use any comma or any other punctuation marks while writing the sender's address in a letter. इस प्रकार से हम लिख देंगे। यदि यहां पर सेंडर्स एड्रेस आपका स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, then you can write here examination hall ABC. You can write this as a sender's address. Then leave at least one line blank, ताकि ये वाला सेंडर्स एड्रेस डेट से बिल्कुल साफ साफ अलग अलग दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट। बहुत से बच्चे यहां पर पहले डेट लिखेंगे और फिर इसके बाद डेट को लिखेंगे। यू नीड नॉट टू राइट दिस वर्ड डेट, राइट द डेट डायरेक्टली। आप सीधा सीधा यहां डेट लिखिए। डेट लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइए हम कुछ तरीकों पर गौर करें। हम डेट को अक्सर, मान लीजिए आज 30th ऑफ अक्टूबर है, अक्सर हम डेट को इस प्रकार से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, या केवल 20 लिख देते हैं। इस प्रकार से डेट को लिखा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोई भी तरीका गलत नहीं है,
लेकिन यहां आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं ये वाला स्लैश, ये वाला डॉट या ये वाला कोमा हमारी डेट को लिखने में रिसीवर को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है। कई बार हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं कि ये ऐसे हो जाता है। तो क्या हम इस डेट को अब पढ़ सकते हैं? इज इट लेजिबल? नो, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। इज इट, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 3/01/3 3 जनवरी और 30 नवंबर, लाइक दिस। तो इस प्रकार से लिखना रीडर को, रिसीवर को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हमें इन तरीकों से बचना चाहिए। अवॉइड दीज मोड्स ऑफ राइटिंग डेट्स इन ए लेटर। सही तरीका है, यू कैन राइट अ डेट इन द DD, MM एंड YY फॉर्मेट। जो अक्सर एक मान्य तरीका है, आप इस तरीके से डेट को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30th, 10th एंड 2020 और 2020। या फिर आप नेम ऑफ द मंथ लिख सकते हैं, उसके बाद डेट, फिर ईयर आप लिखिए, और डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए यहां हम कोमा का यूज अवश्य करेंगे। अदरवाइज होगा क्या, मान लीजिए आप विदाउट कोमा डेट लिख रहे हैं, अक्टूबर 30/20, मान लीजिए आपने ये लिख दिया विदाउट कोमा, और 30/20/20, तो इससे भी कंफ्यूजन होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट लेजिबल, मीन्स इलेजिबल, ये भी समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें डेट को, इस ईयर्स को डेट से अलग करने के लिए वी नीड टू पुट कोमा हियर, यूज कोमा हियर। इसलिए ये इन दोनों तरीके से अगर आप डेट लिखेंगे किसी भी लेटर में तो कभी कोई गलती नहीं होगी। अक्टूबर 30, 2020, very much clear. You can use comma while writing the date in a letter. Then again leave at least one line blank, ताकि डेट को सेंडर्स एड्रेस से और डेट को नीचे वाले रिसीवर्स एड्रेस से अलग अलग किया जा सके, साफ साफ देखा जा सके। नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस। हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस डेट, एंड द नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस। आपके जो लेटर की स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में रिसीवर्स एड्रेस लिखा होता है। आपको क्या करना है, वहां से रिसीवर्स एड्रेस को लेकर केवल आपको इस लेटर के फॉर्मेट में वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अरेंज करना है। मान लीजिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए रिनाउंड न्यूज़पेपर, और वहां पर न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ भी हो सकता है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। इस प्रकार से अगर वहां पर कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, राइट द सेम एड्रेस हियर ओवर। यदि वहां कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। फिर आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम यहां लिख सकते हैं, कोई भी आपका नेबरिंग सिटी यहां लिख सकते हैं जहां से वो स्पेसिफिक पेपर पब्लिश होता है। द एडिटर, द हिंदू, न्यू दिल्ली। इस प्रकार से हमने 3 या 4 लाइंस में रिसीवर्स एड्रेस लिखा। यहां किसी फर्म का नाम हो सकता है। यहां आपको स्पेसिफिक ध्यान यह रखना है कि फर्स्ट लाइन में हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। राइट द डेजिग्नेशन टू होम यू आर राइटिंग टू। जिसे भी आप लिख रहे हैं, हो सकता है वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हो, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो सकता है वो किसी कंपनी या किसी फर्म का मैनेजर हो सकता है वो किसी न्यूज़पेपर का एडिटर हो। यहां पर आप फर्स्ट लेटर इनके कैपिटल लिख सकते हैं, और डोंट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क।
डेजिग्नेशन लिखने के बाद आपको उसका नाम, उसका एड्रेस यहां लिख देना है, बट यहां पर आपको नेम ऑफ द रिसीवर नहीं लिखना है। नेवर राइट द नेम ऑफ द रिसीवर, चाहे बेशक वो वहां दिया हुआ है। ऑलवेज राइट डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द ऑफिस एंड नेम ऑफ प्लेस विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। इस प्रकार से हमने देखा हाउ टू राइट सेंडर्स एड्रेस इन ए लेटर, हाउ टू राइट डेट एंड हाउ टू राइट रिसीवर्स एड्रेस। जितने भी 7 के 7 की पॉइंट्स, की हेडिंग्स, की टाइटल्स हैं हमारे लेटर के, प्रत्येक पार्ट के बीच में एक लाइन खाली छोड़ना ना भूलें, ताकि सभी पार्ट्स सेपरेटली साफ साफ दिखाई दे सकें। रिसीवर को सेंडर्स का एड्रेस दिख सके, सेंडर को रिसीवर का डेट साफ साफ दिखाई दे सके। सभी पार्ट्स को सेपरेटली हम लिखेंगे, लीविंग एट लीस्ट 1 लाइन ब्लैंक बिटवीन बिटवीन एवरी 2 पार्ट्स ऑफ ए लेटर। अभी तक हम 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू राइट सेंडर्स एड्रेस, डेट and receiver's address. The next point is subject. This is a very important point of a letter. Subject, हम एक लाइन में ही सब्जेक्ट को लिखें। इसमें हम कोई बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस या लंबा चौड़ा 3-4 लाइन का सब्जेक्ट कभी ना लिखें। सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ, प्रेसाइज्ड and it should state the exact purpose of the letter. जो हमारे लेटर का मेन पॉइंट है, मेन थीम है या मेन पर्पस है, सब्जेक्ट उसको स्टेट करता हुआ होना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करता हुआ होना चाहिए। रेसिपेंट के लिए कई बार रेसिपिएंट केवल सब्जेक्ट को देखता है, ना कि उसकी कंप्लीट बॉडी। सब्जेक्ट पर जैसे ही उसकी नजर जाती है, he sends the letter to the specific or prescribed seat, to the person, to the right person for which the letter is for. So, subject should be short, but it should be catchy. Catchy means एकदम देखते ही उसका ध्यान रेसिपिएंट का या रीडर का सब्जेक्ट पर ही जाता है। तो सब्जेक्ट शुड बी कैची एंड इट शुड स्टेट द purpose of the letter. It should not be more than 7 to 8 words. हम किसी भी टॉपिक का, किसी भी लेटर का सब्जेक्ट 7 से 8 वर्ड से ज्यादा ना लिखें। मान लीजिए we are writing a letter to the editor, then and the subject is polluted water supply and we have to complain. Complaint regarding polluted water supply, complaint regarding erratic electricity supply, इस प्रकार से हो सकता है। If you are writing this letter to a businessman, to a business firm, then you can write regarding placing an order for so and so products, cancellation of orders. In this way, we can write subject in a short and catchy way, stating the exact purpose of the letter. Next is, after subject we write salutation, and in case of salutation it becomes very important. हम जिसे भी लेटर लिख रहे हैं, क्या हम उसे जानते हैं? If I know, यदि मैं जानता हूं, for example, a student is writing a letter to school administration or the school principal, and he or she knows who is the principal. If the principal is a male person, then he or she or a student should write sir. Sometimes we write dear sir, esteemed sir, respected sir. As per my opinion, I think we need not to write many
adjectives before this word sir or madam, because sir and madam are themselves respected words. सर और मैडम अपने आप में ही रेस्पेक्टेड वर्ड्स हैं. इससे पहले हम एस्टीम्ड, रेस्पेक्टेड और डियर सर और डियर मैम ना लगाएं तो ही अच्छा है. यहां पर यदि आप जानते हैं दैट द बॉस और द पर्सन होम यू आर राइटिंग टू इज a male person, then just write sir. If the person whom you are writing to is a female person, then write madam. And if you don't know either he is male or she is female, then write sir oblique madam. That is sufficient. You have to write the letter to some officials, editors or businessmen or other officials. Then just write sir or ma'am or sir oblique madam. This will be sufficient to write. Next is body. यहां पर हम सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच भी एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे और सैल्यूटेशन के बाद भी एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए we shall begin writing the body of the letter. As far as the body of the letter is concerned, the body is the main part of any letter. This is the main part. First of all, we have to write the body at least in 3 paragraphs. Short paragraphs. We need not to elaborate the body into 1.5 pages or more than 2 pages. We have to complete it in more than half page of a register. Now, whatever is the subject, to whomever we are writing to, we should divide the body of the letter into 3 paragraphs, para 1, para 2 and para 3. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बॉडी को 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में बांट लीजिए. पैरा 1. अब पैरा 1 में हमें लिखना क्या है, पैरा 2 में क्या लिखेंगे और पैरा 3 में क्या होगा, आइए इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं. पैरा 1 में हमारा जो लेटर का जो पर्पस है वो होना चाहिए. पर्पस, मेन आइडिया और रेफरेंस टू समथिंग. आप किसके रेफरेंस में ये लेटर लिख रहे हैं? इफ इट इज ए जॉब एप्लीकेशन, इफ इट इज ए लेटर फॉर ए जॉब, देन यू शुड मेंशन द रेफरेंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट. If you are writing to a businessman, then always state the main idea or purpose of the writer, of the sender of the letter, and the purpose should be clear in the first para or first 2-3 lines of the body of a letter. Next is para 2. अब जब हमने यहां पर purpose, main idea और reference लिख ही दिया है, इसके पश्चात आपको कोई अलग से लाइन में पैरा शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने पर्पस या मेन आइडिया को सपोर्ट करते हुए एट लीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स पैरा 2 में लिखेंगे. वी हैव टू elaborate our purpose or main idea by writing 3 to 4 points to support the purpose using our own observations. उस चीज के बारे में जिस बारे में भी हम लेटर लिख रहे हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि जनरल सेंस में हम क्या करेंगे. जो भी हमारा पर्पस है उस पर्पस को सपोर्ट करते हुए 3 to 4 पॉइंट्स हम यहां लिखेंगे, ताकि वो पर्पस, वो प्रॉब्लम, वो इशू या वो जो भी पर्पस है वो यहां स्पष्ट हो जाए कि हम चाहते क्या हैं या व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड, कि हुआ क्या है. एट लास्ट पैरा 3.
which is very important for the body of any letter. Para 3 should state or we should sum up the letter. Para 3 में हम लेटर को sum up करेंगे with a polite request. चाहे हम मान लीजिए हम कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं या किसी इशू की तरफ हम किसी का अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी है, बट वी शुड नेवर बी इम्पोलाइट. वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट in a formal letter while summing up the body of the letter. Polite request, wish, idea. We should give some suggestions or we must appeal to the authorities. या हमें अपील करनी चाहिए. वो अपील, वो सजेशन, वो विश या फिर वो आइडियाज जो हम देना चाहते हैं, वो सॉल्यूशन जो हम सुझाना चाहते हैं, उन्हें उन सॉल्यूशंस को हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए ही अपनी बात को रखें या लेटर की बॉडी को सम अप करें. इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर बॉडी हमारी तैयार हो जाएगी. अगर हम यहां बात करें डिवीजन ऑफ मार्क्स की, जितना इंपॉर्टेंट ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखना है उतना ही इंपॉर्टेंट बॉडी लिखना भी है. अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज को लिख सकते हैं या किस प्रकार से हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखना चाहिए. एंड एट लास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज. इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, जहां भी हमारी बॉडी ऑफ लेटर समाप्त होती है, उसके तीनों पैसेज समाप्त होते हैं, हमारे सजेशंस, ओपिनियंस या फिर हमारी एक पोलाइट रिक्वेस्ट जो है समाप्त हो जाती है, उसके बाद हम पोलाइटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन होम वी आर राइटिंग टू, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज करेंगे. इट विल बी द एंड ऑफ आवर लेटर. ये हमारा अंतिम स्टेप होगा. If we are writing the letter to an official or to a business firm, then we should end our letter with yours truly or yours sincerely or yours faithfully. यहाँ पर अक्सर एक छोटी सी गलती जो अक्सर देखी जाती है वो ये कि बच्चे इस yours को अपस्ट्रॉफी लगाकर इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि आपको नहीं लिखना है. यहां आपको केवल एक प्रोनाउन के रूप में एस लगाते हुए योर्स लिख देना है, ना कि अपस्ट्रफी लगाकर. सेकेंडली, योर्स का वाई हमें यहां कैपिटल लिखना है, लेकिन ट्रूली का टी स्मॉल लिखेंगे या सिंसियरली का एस स्मॉल लेटर लिखेंगे या फेथफुली का एफ स्मॉल लिखेंगे. यहां पर हम इस तरीके से कभी ना लिखें योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली. डोंट राइट लाइक दिस. दिस इज रॉन्ग. ऑलवेज यूज फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन नेक्स्ट इनिशियल लेटर ऑफ नेक्स्ट वर्ड स्मॉल. योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली. एक और गलती जो यहां देखने को मिलती है वो ट्रूली को लिखने में मिलती है. बच्चे अक्सर ट्रूली को, क्योंकि ट्रू TRUE होता है, जब हम इसमें LY ऐड करते हैं तो वी हैव टू रिमूव E बिफोर एडिंग LY टू इट एंड इट बिकम्स TRULY, ना कि TRUELY, जो कि गलत स्पेलिंग्स है. आपको यहां ध्यान रखना है ट्रूली, सिंसियरली और फेथफुली इफ यू आर राइटिंग ए लेटर टू एन ऑफिशियल और ए बिजनेस फर्म और ओनर. बट इफ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर प्रिंसिपल और टू योर टीचर्स, योर क्लास इंचार्ज और इंचार्ज ऑफ सम अनदर इवेंट, then always use yours obediently, because students are obedient to their teachers and principals.
yours obediently, or you can write yours sincerely. And now the latest trend is also there. Sometimes it is also written sincerely yours. Sincerely yours. You can write like this also. Sincerely yours. In this way, we can end our letter by writing this short complementary clause. If you are writing the letter to your family members, relatives or friends, if the letter is informal one, then this complementary clause will change completely. Then we have to write yours lovingly, yours loving son, loving brother, loving sister or loving friend, or yours affectionately. In this way, this complementary clause gets changed while writing the letter to our family, friends and relatives. And at last, if you are writing an official letter where it's necessary to make your sign or to put your sign at the end of the letter, then write your name. If the name is given in the statement, then write the same name here. If no name is given, then write yours name or name of yours, or if you are writing this letter in an examination, then write ABC or XYZ here and put your signature above your name. Write your name in capital letters and then put your signature above your name at the end of the letter. In this way, we can write an effective letter, either it is a formal letter or an informal one. Follow these instructions, these rules and write an effective letter. आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से through some sample examples, through some sample solutions, we shall write how to write different types of letters. Thank you very much.